video, we are going to study the chapter number 9th. The name of the chapter is Dusk, which is for the syllabus of 8th grade students of CBSE. It is taken from the Enchanting English Reader for the 8th grade students of CBSE. Okay. So, Dusk. It is written by Hector Hugh Munro. It is a short story. This writer is also called as साकी. इस राइटर को कॉमनली साकी नाम से पहचाना जाता है, डिनोट किया जाता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्क? डस्क मतलब क्या होता है? डस्क इज अ पार्ट ऑफ द डे, जो कि टाइम जब भी इवनिंग भी नहीं होती, नाइट भी नहीं होती. द टाइम बिटवीन द इवनिंग एंड नाइट मीन्स आफ्टर द सनसेट. जब भी सनसेट होता है तो उसके बाद में, सनसेट होने के बाद में भी थोड़ी सी रोशनी बादलों में दिखाई देती है, और इवन वी कैन सी मून ऑल्सो क्लियरली. सो उस टाइम को, उस वक्त को, उस फेज को डस्क कहा जाता है. सो इट इज़ नॉट इवनिंग. इवनिंग एक डिफरेंट पार्ट है और नाइट भी डिफरेंट पार्ट है. इट कम्स बिटवीन द इवनिंग एंड नाइट. एंड व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डस्क? dawn. DAWN. It is the opposite of dusk. So it is a short story written by Saki, which is also called as Hector Hugh Munro. The main characters of this short story, it is a short story. The main characters are Norman Godsbad, an elder man and young man. These three are the main characters of this story. So guys, now we are going to begin with the chapter. So I request you, please open your textbooks so that you can come to know about the text whatever I am reading. Norman Godsbad sat on a bench in the almost deserted park. It was some 30 minutes past 6 on an early March evening, and dusk had fallen heavily over the scene, mitigated by faint moonlight and many street lamps. So we can see some faint moonlight and even the street of the lamps are on. So Norman Godsbad is sitting on a bench on this phase, enjoying this phase of the nature. The scene harmonized with Godsbad's present mood. Dusk, to his mind, was the hour of the defeated. Men and women who had fought and lost come forth in this hour, so that their shabby clothes and bowed shoulders and unhappy eyes might pass unnoticed and unrecognized. So usually at this time the people come out of their houses, they stop their work and have some time sitting alone or sitting or enjoying the time of the dusk. यूजुअली हमारे यहाँ पे भी देखा जाता है कि एट द इवनिंग वॉक पे जाते हैं लोग, और व्हेन द सन सेट्स पीपल यूज टू सिट क्वाइटली एट वन प्लेस एंड लव टू सी द नेचर, सी द एनवायरमेंट एंड सी द changes in the atmosphere which is happening during this time. So during this time people are mostly not doing any work. Whatever they had done all through the morning, they are reciting it or they are refreshing it. Okay, so Norman Godsbad is also sitting on the bench. Godsbad was in the mood to count himself among the defeated, although money troubles did not press on him. On the bench by his side sat an elderly gentleman who looked as if the fight had gone out of him. His clothes could scarcely be called shabby. He rose to go, his retreating figure vanishing slowly into the shadows, and his place on the bench was taken almost immediately. तो क्या हो गया? एक elderly man, he was not, here it is not given that he is an old man, he is elderly man. He is described as an elderly gentleman who had worn a shabby clothes, and he sat beside him on the bench. And after some time he got up and vanished, means he disappeared into the shadows, and quickly another young man took his place. Okay, तो इस एल्डर मैन का इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो बैठा हुआ था थोड़ी देर के लिए. ही इज हैविंग शैबी क्लोथ्स, और कैसा था? ही लुक्ड
as if the fight had gone out of him. तो कुछ थका हारा हुआ वो लग रहा था। तो उसके बाद में वो सिर्फ उठ के चला जाता है और उसकी जगह एक यंग मैन आके बैठता है। इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया है। ये यूजुअली जो नॉर्मल गॉड्स है उसका नेचर कैसा है? ही इज अ गुड ऑब्जर्वर, ही इज अ जजमेंटल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ही यूज टू जज द पर्सन and he thinks that he is very intelligent. So at the end of this story we come to know about how his judgment proved wrong, and judging a person only because of their appearance and because of their outer function is not necessary. It is given at the end of this story. So he rose to go, his retreating figure vanishing slowly into the shadows, and his place on the bench was taken almost immediately by a young man, fairly well dressed but scarcely more cheerful to mean than his predecessor. मीन का मतलब दिया है एटीट्यूड और पर्सनैलिटी। वो काफ़ी एटीट्यूड वाला था, एटीट्यूड में आके बैठ गया। और प्रीडिसेसर मीन्स समथिंग और समवन दैट केम बिफोर, जो पहले आया था उससे काफ़ी वो पर्सनालिटी में ठीक था, अच्छा था। He was angry and plunged himself into the seat with an offensive word. वो काफ़ी गुस्से में था। You don't seem in a very good temper, said Godspell. तो Godspell क्या बोलता है कि तुम हाई टेम्पर्ड में लग रहे हो, तुम्हारा टेम्पर नॉर्मल नहीं लग रहा है। You wouldn't be in a good temper if you were in the fix I am in. He said, I have done the silliest thing I have ever done in my life. तो क्या बोल रहा है कि अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुम भी ऐसा ही बिहेव करते, क्योंकि मैंने एक ऐसी सिली मिस्टेक की है मैंने जो जिंदगी में कभी भी नहीं की। Yes, said Godspell dispassionately. तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो dispassionately means क्या है? Without any emotion. Without any emotion उसने कहा हाँ। Came up this afternoon. मैं वो बता रहा है कि मैं आज दोपहर में आया। Meaning to stay at the Patagonian Hotel in Berkshire Square, continued the young man. मैं पैटागोनियन होटल में रुकने के लिए, जो कि बिर्कशायर स्क्वायर में है, आज दोपहर में आया। When I got there, I found it had been pulled out some weeks ago and a cinema theater run up on the side. तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि वो होटल तो बंद हो चुका है और उसके जगह वहाँ पे सिनेमा थिएटर ओपन हुआ है। The taxi driver recommended another hotel some way off. I just sent a letter to my people giving them the address and then I went out to buy some soap. तो क्या बोलता है कि टैक्सी ड्राइवर ने मुझे दूसरा होटल रिकमेंड किया तो मैं वहाँ पे चला गया और जो मेरे रिश्तेदार थे उनको मैंने लेटर भेज दिया कि मैं इस होटल में रुका हूँ। I just sent and then I went out to buy some soap. और मैं बाहर चला गया सोप लाने के लिए, साबुन लाने के लिए। I had forgotten to pack any and I hate using hotel soap. क्यों? क्योंकि मैंने पैक करते वक्त मैंने साबुन पैक करना भूल चुका था और मुझे बिल्कुल भी होटल का सोप यूज़ करना पसंद नहीं है। Then I strolled about a bit, had a drink, and when I turned my steps back to the hotel, I suddenly realized that I remembered neither its name nor even the street it was in. तो मैं बाहर निकल पड़ा साबुन लाने के लिए और जब भी मैंने ड्रिंक ली, then I strolled about a bit, वो रुका, then उसका ड्रिंक ली उसने जो उसको लेना था, and when I turned my steps back to the hotel, और जब मैं होटल को वापस जाने के लिए निकला तो मुझे याद आया कि मेरे को तो होटल कहाँ पे है उसका लोकेशन ही पता नहीं और मैं भूल चुका हूँ और किस रास्ते पे है, कौन सी स्ट्रीट पे है, उसे कुछ भी याद नहीं है। There's a nice predicament for a fellow who hasn't any friends or connections in London. प्रेडिसेमेंट का मतलब आपके टेक्स्ट बुक में दिया है अनप्लीजेंट सिचुएशन। ये काफ़ी अनप्लीजेंट सिचुएशन है उस बंदे के लिए जो कि लंदन में उसका कोई फ्रेंड ना हो और कोई कनेक्शन किसी लोगों के साथ में ना हो। Of course, I can wire to my people for the address, but they will not get my letter till tomorrow.
ऑफ कोर्स मैं अपने लोगों से मैं मदद मांग सकता था, लेकिन उनको भी अभी तक वो लेटर नहीं पहुंचा होगा, वो लेटर उनको कल मिलेगा। आई केम आउट विथ अबाउट अ शिलिंग ऑन मी। शिलिंग एक करेंसी है और फॉर्मर मॉनिटरी यूनिट ऑफ द यूके इक्वल टू 12 पेंस और 1/20th section of the pound, which bent in I came out with about a shilling on me। shilling थी उसके साथ में currency, which went in buying the soap and drink, जो कि soap परचेस करने में और ड्रिंक परचेस करने में खर्च हो गई। एंड हियर आई एम वॉन्डरिंग अबाउट विथ 2 पेंस। अभी सिर्फ मेरे पास में 2 पेंस बाकी हैं इन माई पॉकेट। एंड नाउ वेयर टू गो फॉर द नाइट। और मैं रात कहाँ पे गुजारूँ ये उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कैसे गुजारूँ ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देयर वॉज एन एलोक्वेंट पॉज आफ्टर द स्टोरी हैड बिन टोल्ड। एलोक्वेंट का मतलब है फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे एक साइलेंटली एक पॉज, एक रुकावट हुई, एक रुक गए दोनों भी। आफ्टर द स्टोरी हैड बीन टोल्ड आई सपोज यू थिंक आई हैव स्पन यू रैदर एन इम्पॉसिबल यार्न सेड द यंग मैन। तो क्या बोल रहा है वो, मुझे लगता है मैंने तुमको काफ़ी कंफ्यूज किया। स्पन मीन्स जैसे काटना, ऊन काटते हैं ना, उसका स्पिन का V2 फॉर्म है स्पन। तो वो बोल रहा है यू मेरी बातें सुन के काफ़ी तुम कंफ्यूज हो गए होगे। Not at all impossible, said Godspear judicially. I remember doing exactly the same thing once in a foreign capital, and on that occasion there were 2 of us, made it more remarkable. Luckily we remembered that the hotel was on a sort of canal and we were able to find our way back to the hotel. तो क्या बोल रहा है, not at all impossible। ऐसे impossible ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम सिचुएशन मेरे साथ में थी जब भी मैं फॉरेन टूर पे था। एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस इन अ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कंट्री में गया था। तो लेकिन मुझे वहाँ का लैंडमार्क याद था कि इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ कैनल एंड वी देन फाइंड आउट दैट प्लेस वेर एवर वी आर वेटिंग। द यूथ ब्राइटन एट द रेमिनिसेंस। Unless I find some decent chap to swallow my story and lend me some money, I seem likely to spend the night on the street. I am glad anyhow that you don't think the story outrageously improbable. Outrageously का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। तो तुम मेरे को ऐसा बंदा जब तक नहीं मिल जाता जिसको मेरी स्टोरी पे यकीन हो और जो मेरी थोड़ी बहुत पैसे देके मदद कर सके, तभी तक शायद मुझे मेरी रात तो यहाँ पे रास्ते में ही गुजारनी पड़ेगी, ऐसा वो बोल रहा है। दैट यू डोंट थिंक द स्टोरी outrageously improbable, probable मीन नॉट लाइकली टू बी ट्रू। तो तुमको शायद मेरे स्टोरी पे भरोसा नहीं है, ऐसे बोल रहा है। He threw a good deal of warmth into the last remark. Of course, said Godspear slowly, the weak point of your story is that you can't produce the soap। तो बोल रहे बिल्कुल मुझे स्टोरी पे भरोसा है ही नहीं। तुम्हारी स्टोरी का वीक पॉइंट क्या है कि तुम सोप को नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ये सुनने के बाद में द यंग मैन सैट फॉरवर्ड हरीडली, felt rapidly in the pockets of his overcoat and then jumped to his feet। तो फिर वो फौरन से खड़ा हो जाता है, अपने जो जैकेट था उसकी जेब में वो हाथ डाल के ढूंढने लगता है और जल्दी जल्दी करता है। आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, ही मटर्ड एंग्रीली। और गुस्से में जवाब देता है कि शायद मैंने मेरा सोप घूम गया है, मेरा सोप शायद मैंने घुमा दिया है। देन ही फ्लिटेड अवे डाउन द पाथ, हिज हेड हेल्ड हाई। इट वॉज अ पिटी, म्यूज्ड Godspear, the soap was the one convincing touch in the whole story, and yet it was just that little detail that brought him to grief। तो क्या बोला था, एक ही चीज़ जो साबुन था वो एक ही चीज़ ऐसी थी जिससे मैं उसकी स्टोरी पे यकीन कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है उसके पास में। With that reflection, Godspear rose to go and saw lying on the ground by the side of the bench a small old pocket।
पैकेट wrapped and sealed by a chemist। तो अभी ये जो यंग मैन है वो उठ के गुस्से में चला गया है। इस स्टोरी में क्या किया है, ये काफ़ी डस्ट के उसमें थोड़ा थोड़ा रिडक्शन करके आपके सिलेबस में स्टोरी दी है। तो अभी तो सिचुएशन क्या हो गया कि ये जो यंग मैन है वो उठ के चला गया है और वापस विद द रिफ्लेक्शन गॉड्स बाय रोज टू गो। अभी उस बेंच पर से गॉड्स बाय भी, नॉर्मल गॉड्स बाय भी उठ के जाने के लिए निकल रहे हैं। तभी उनको एक रैपर दिखता है, एक पैकेट दिखता है जिसमें सोप जो है रैप किया हुआ था। It could be nothing else but a cake of soap, and it had evidently fallen out of the youth's overcoat pocket when he flung himself down on the seat। तो गॉड्सपैक क्या सोचते हैं, ये तो सोप है जो कि जो यंग मैन था उसके जेब में से यहाँ पे गिरा है। गॉड्सपैक ran along the dusk shrouded path in anxious quest for a youthful figure in a light overcoat। अभी गॉड्सपैक उस यंग मैन को ढूंढते हुए निकल पड़े हैं स्ट्रीट पे। द यंग मैन turned round sharply with an air of hostility। लेकिन ये जो यंग मैन था वो तो गॉड्सपैक पे बहुत गुस्सा था क्योंकि उन्होंने उसकी स्टोरी पे भरोसा नहीं किया। सो ही टर्न अराउंड विथ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स इन विथ अनफ्रेंडली बिहेवियर। अनफ्रेंडली बिहेवियर के साथ में उन्होंने उसको टर्न करके देखा। When he found Gottsback hailing him means to call out in order to stop। When he is calling him to stop, he turned out in a very unfriendly manner। The important witness to the geniusness of your story has turned up, said Gottsback। आपकी जो स्टोरी की सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस थी वो तो मिल चुकी है। होल्डिंग आउट द केक ऑफ सोप, और उनको केक ऑफ सोप उनके हाथ में थमाते हैं। इट मस्ट हैव slid out of your overcoat pocket when you sat down on the seat। I saw it on the ground after you left। You must excuse my disbelief if the loan of a sovereign is any good to you। तो बताते हैं कि जब आप वहाँ पे बैठे थे तो शायद तुम्हारे पॉकेट में से वो सोप गिर गया होगा। सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर द डिसबिलीफ। तुम पे यकीन नहीं करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। एंड प्लीज़ एक्सेप्ट सोवर्जिन, और थोड़े पैसे भी वो देते हैं अपने तरफ से। फॉर द गॉड सिक ऐसे वो बोल के देते हैं। द यंग मैन हैस्टली पॉकेटेड द कॉइन। हैस्टली मीन्स इन जल्दी से, इन द फास्ट, स्विफ्टली। वो फ़ौरन से क्या करते हैं, वो जो कॉइन्स होते हैं अपने पॉकेट में डाल देते हैं। Here is my card with my address, continued Gottsback, and any day this week will do for returning the money। And here is the soap, don't lose it again, it's been a good friend to you। और साथ ही में नॉर्मन जो है अपने घर का एड्रेस भी देते हैं ताकि वो जब भी वो यंग मैन पैसे वापस देना चाहे तो वो दे सकता है। Lucky thing you're finding it, said the youth। He blurted out a word or two of thanks and fled। तो वो एक दो अल्फाज सिर्फ शुक्रिया के अदा करता है, एक दो वर्ड्स थैंक बोलता है, फौरन से वहाँ से उड़न छू हो जाता है। तो अभी यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है। इट्स अ लेसन टू मी नॉट टू बी टू क्लेवर इन जजिंग बाय सर्कमस्टेंसेस, सेड गॉड्सबैक टू हिमसेल्फ। अभी गॉड्सबैक क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरे लिए एक लेसन हो गया कि पर्सन को उसकी सर्कमस्टेंसेस मीन्स उसके परिस्थिति के अनुसार जज नहीं करना चाहिए। एज Gottsback retraced his steps past the bench, he saw his earlier fellow occupant poking and peering beneath and on all sides of the bench। तो वापस से जब भी वो जाते हैं तो वही उसी बेंच से गुजरते हैं। तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, जो ये एल्डरमैन था ना, एल्डरमैन, he was peering and poking beneath the bench, beneath the all sides of the bench। वो शख्स कुछ तो उस बेंच के नीचे साइड में कुछ तो ढूंढ रहा है। he is searching something। have you lost anything sir, he asked। वो उसको पूछते हैं क्या आपने कुछ घुमा दिया है, क्या आपसे कुछ घूम चुका है। तो क्या बोलते हैं, yes। एल्डरली मैन क्या बोल रहा है, yes sir a cake of soap। हाँ सर, मेरे से साबुन का बॉक्स या फिर साबुन मेरे हाथ से घूम चुका है। सो एट द एंड वी कम टू नो दैट ये जो केक ऑफ सोप था
ये यंग मैन का नहीं था, इट इज ऑफ द एल्डर मैन। और लास्ट में स्टोरी से क्या पता चलता है, ये जो यंग मैन था ही वॉज अ थीफ, वो लोगों को लूटता था इन अ वेरी अलग तरीके से, इन अ वेरी मीन्स कैसे बोलते हैं, काफ़ी सोची समझी चाल चल के वो लोगों को लूटता था। सो ही वॉज अ थीफ एंड ये जो केक ऑफ सोप था एल्डरमैन का था। एंड एट लास्ट वी कम टू नो दैट द जजमेंट ऑफ द नॉर्मन अगेन इट वॉज रॉन्ग। सो it was about a story, a short story. Short story क्या होती है? A story which can be completed, which is completed at one sitting. एक शॉर्ट स्टोरी वो होती है जो एक सिटिंग में कंप्लीट हो जाए। सो इट इज अ डस्क रिटन बाय हेक्टर हग मुनरो, which is also who was also called as Saki. Okay guys, thanks for watching my video. I hope आपको ये लेसन, ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।